Hey guys, welcome back to my channel. Myself Chetna Singh, your study buddy, and in this video we are going to start with our chapter 2, that is food. As we all know, all the living organisms, either plants, animals or microorganisms, they need food for their survival. So we are going to start with our chapter food. In that we are going to discover what are the various sources of food. Not only that, we are going to learn about the components of food, right? So we are starting with our chapter, that is now, as we all know that all the living organisms, plants and animals or microorganisms, they need food. As we have studied earlier, the plants which prepare their food by their own are known as autotrophs. जो अपना खाना खुद बनाते हैं, they are known as autotrophs. जो कि animals हैं, they are heterotroph because they cannot prepare their food by themselves. Hence, they are dependent on plants or other living organisms. So in this chapter, first we are going to learn about the sources of food, right? तो सोर्सेज ऑफ फूड की बात करें, अगर हम नेचुरली अपने आप को ही ऑब्जर्व करें, तो अगर हम मेजर सोर्स जो है वो देखें तो देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट से हम किस किस फॉर्म में जो है हमें फूड मिलता है. फर्स्ट if I talk about plant is cereals, right? cereals में आपका grains आ जाएंगे, wheat हो गया, rice हो गया, they come in cereals, right? Not only that, we get vegetables from plants. Not only that, we are getting fruits from plants, okay? और इसके अलावा we are getting oil like sunflower oil, groundnut oil, sesame seeds का oil, right? We are getting that from the plants. इसके अलावा we also get spices. स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, वी आर गेटिंग स्पाइसेस फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स. यस, वी फॉरगॉट पल्सेस, ठीक है? पल्सेस जो हमारा बेसिक अभी के टाइम पे जो है पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, जितना भी हम खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारे बेसिक किचन में, दैट वी ऑल गेट फ्रॉम प्लांट्स. अगर मैं इसके साथ डिफ्रेंशिएट करूँ, वन थिंग यू गेट फ्रॉम एनिमल्स इज मिल्क. वी ड्रिंक इट डेली, राइट? मिल्क. इसके अलावा वी गेट meat, okay? chicken, mutton, whatever you are getting in the form of meat, you are getting from animals. इसके अलावा eggs, right? इसके अलावा क्या है? eggs, right? तो cereals की बात करूँ तो हमारा rice और wheat हो सकता है, ठीक है? any grain. fruits की बात करूँ, apple हो गया, mango हो गया, right? vegetables की बात करूँ, turnip और कैरेट, एंड यू नो मैनी मोर वेजिटेबल्स, राइट? ऑयल की बात करूँ तो ग्राउंडनट ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल भी कह सकते हैं, ओके? और इसके अलावा स्पाइसेस की बात करूँ, क्यूमिन सीड्स, राइट? क्यूमिन होता है आपका जीरा, फेन्यूग्रीक, मेथी, ठीक है? तो दीज आर द कार्डमम, इलायची, दीज आर सम स्पाइसेस. पल्सेस की बात करूँ तो आपके लेंटिल्स, राइट? हिंदी में अगर नेम्स लो, चना दाल, ग्राम, दैट इज़ आपका ग्राम इज़ चना जो होता है, बेसिकली छोले हो गए, दैट कम्स इन ग्राम, ओके? मिल्क जो है आपका काउ बफेलो, right? cow buffalo, they produce milk, and the milk giving animals are known as milch animals, right? milk giving animals are known as milch animals. और वैसे ही egg giving birds are known as
poultry birds. They are known as poultry birds. फॉर एग्जाम्पल आपका hen हो गया या ऑस्ट्रिच हो गई, दे गिव्स एग्स, ठीक है। तो आपका प्लांट्स में देर आर वेरियस फॉर्म्स जिनसे हम प्लांट्स से ले रहे हैं, ओके। और एनिमल से मिल्क, मीट एंड एग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम animals. तो major sources plants and animals, these are the different forms what we are getting from the plants, and these are the different products what we are getting from the animals. Hence the major sources of food is plants and animals. Now next we are starting with the components ऑफ फूड, राइट। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं कि हम जो फूड खा रहे हैं हमें उसमें से क्या क्या कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, जैसे राइट। तो जब मैं फूड अपना कंज्यूम कर रही हूं तो मुझे मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, इसके साथ साथ वाइटामिन्स, राइट, इसके साथ प्रोटीन्स, राइट, इसके साथ फैट्स एंड रफेज, राइट, दैट इज फाइब्रस सब्सटेंस। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये दिस कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड रफेज, दे ऑल आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब जो है हमने इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जो हमारी बेसिक जो कैटेगरीज हैं, जैसे है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, जिनको खा के हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, राइट। तो वो है हमारा कोई भी काम करने के लिए जो हमारी को एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसके अलावा हमारे पास है बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट, आर मसल्स गेट जनरेटेड, राइट। तो हमारे टिश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी बन रही है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ प्रोटीन। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जो हमारे जो ग्रोथ होता है, जो हमारी मसल्स डेवलप होती हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। इसके अलावा आपके एक और फूड की कैटेगरी है, दैट इज़ प्रोटेक्टिव फूड, राइट। एक से हमें एनर्जी मिल गई, दूसरे ने हमारी मसल और ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोवाइड किया, तो हमें एक ऐसा भी जो है प्रोटेक्टिव फूड भी चाहिए, जो कि बाहर से अगर हमारे कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी बाहर से कोई भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके हमें इन्फेक्ट कर रहा है, तो उससे हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, तो दैट इज़ प्रोटेक्टिव फूड। और इस कैटेगरी में आते हैं आपके वाइटामिन्स, इस कैटेगरी में आते हैं आपके वाइटामिन्स, राइट। तो वी आर गोइंग टू लर्न दीज कंपोनेंट्स ब्रॉडली, ओके। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए, वी आर स्टार्टिंग विथ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बोहाइड्रेट की कॉम्पोजिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्पोजिशन मतलब कि ये किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, फर्स्ट इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट ये बना है मिलकर के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दे कंबाइंस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है, एज वी ऑल नो, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, राइट। तो ये क्या करता है, आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके जो मेन आपका
अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में स्टोर होता है, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च, राइट। दे बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट, लेकिन ये दो अलग अलग फॉर्म्स में जो है वो स्टोर होता है। शुगर की मैं बात करूँ तो इट इज़ इन मैंगो और लीची, राइट, और स्टार्च की बात करूँ तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो, राइट। तो स्टार्च को आप एक चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है, आप जब पोटैटो को कट करते हो तो यू विल सी सम वाइटिश लिक्विड इनसाइड द पोटैटो, ठीक है। दैट वाइटिश लिक्विड इज एक्चुअली द शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। जिसमें से भी कट करने से कुछ वाइटिश कलर का सब्सटेंस निकले तो दैट इज स्टार्च, राइट। और मैंगो और लीची आप जब खाते हैं तो देयर इज नेचुरल स्वीटनेस इन दैट, तो दैट इज शुगर विच इज़ अगेन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है आपको कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिसमें स्टार्च हो, ये दे प्रोवाइड्स यू carbohydrates, right। Now we are coming to proteins. Now we are starting with proteins. तो अब हमारे प्रोटीन्स का क्या कॉम्पोजिशन है, राइट। किन किन चीज़ों से मिल कर जो है हमारा प्रोटीन बना हुआ है। तो इसके कॉम्पोजिशन में भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन मोर थिंग नाइट्रोजन, ठीक है। ये तो मैक्सिमम अमाउंट है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, राइट। तो ये जो है कॉम्पोजिशन है आपकी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, राइट। तो ये जो है आपकी इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के प्रोटीन बना हुआ है, राइट। तो हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स हो गया। प्रोटीन हाउ इट हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ डेवलपिंग टिश्यूज इनसाइड आवर बॉडी। इट ऑल्सो टेक्स केयर वेयर एंड टियर ऑफ टिश्यूज थ्रू आउट द लाइफ। जो भी हमारी बॉडी में टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, तो उसका ध्यान कौन रखता है? द प्रोटीन्स टेक केयर ऑफ दैट। दैट्स वाई दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ वी आर कमिंग टू फैट्स। चलिए फैट्स की अगर मैं बात करूं तो फैट्स भी हमारा बना हुआ है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं पहले तो देयर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज स्लाइटर लेस देन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। सेम कॉम्पोजिशन है लेकिन ऑक्सीजन is lesser than carbohydrates, right। तो it is lesser than carbohydrates, okay। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है और जो आपके फैट्स में है उसमें ऑक्सीजन कम अमाउंट में होता है, बट फैट्स गिव्स मोर एनर्जी, ठीक है। इट गिव्स मोर एनर्जी देन carbohydrates, right। Fats provide more energy than carbohydrates, right। और जो इसका मेजर सोर्स है वो आपका बटर हो गया, घी हो गया, दैट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फैट्स। अगेन फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी, राइट। जब तक फैट हमारी बॉडी में नहीं है तब तक हमारे बहुत से जो वाइटामिन्स हैं दैट आर फैट सोल्यूबल, वो एब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में, वो डिज़ोल्व नहीं होते बॉडी में, राइट। तो अगेन फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, राइट, सोर्स ऑफ फूड विच शुड बी
ईटन बाय अस, राइट। तो अगर बॉडी में फैट नहीं है तो बहुत टाइप के जो वाइटामिन्स है दे आर नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। नाउ अब हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पढ़ लिया है, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द फूड मटेरियल विच आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें कंटेंट क्या है, राइट। तो वी आर कमिंग टू द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। सबसे पहले बात करें हम टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट की, तो सबसे पहले शुगर का जो हम टेस्ट करते हैं, इट इज़ टेस्टेड बाय अ सॉल्यूशन दैट इज़ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, राइट। इसके लिए क्या करना है आपको, टेस्ट ट्यूब में कोई भी फूड मटेरियल लेना है, ठीक है, और उसको होल्डर की मदद से यू हैव टू ऐड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इन दैट एंड क्विकली हीट दैट सोल्यूशन, राइट। अगर वो जो उसमें आपको कलर चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं एंड द कलर विल चेंज टू ऑरेंज कलर, राइट। अगर ऑरेंज कलर में वो सोल्यूशन चेंज हो जाता है देन देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ शुगर। कभी भी जैसे आप वो जो फूड मटेरियल का सोल्यूशन का जो कलर है वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाए तो इट मीन्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ शुगर, राइट। नाउ वी आर कमिंग फॉर द टेस्ट ऑफ स्टार्च। नाउ स्टार्च का टेस्ट होता है आपका आयोडीन सोल्यूशन से, राइट। कोई भी फूड मटेरियल है, कट करो, जैसे पटाटो को कट करा हमने और उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वी आर ड्रॉपिंग आयोडीन सोल्यूशन ऑन दैट, और जैसे ही हम उसके ऊपर वो सोल्यूशन डालेंगे यू विल सी द आयोडीन सोल्यूशन विल टर्न टूवर्ड्स द ब्लू ब्लैक, उसका कलर चेंज होने लगेगा, जो नेचुरल कलर है उससे थोड़ा सा ब्लैकिश टोन की तरफ जाने लगेगा, राइट। तो आयोडीन कलर विल चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, और जैसे ही ये ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो इट मीन्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैट फूड मटेरियल। नाउ फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोटीन, राइट। प्रोटीन इज टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगेन इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। बहुत प्रिकॉशंस के साथ यू हैव टू टेक द फूड सैंपल को मोर्टर और पेस्टल में, ठीक है, उसमें उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, थोड़ा सा पानी डाल करके उसका सॉल्यूशन बना देना है, सस्पेंशन बेसिकली। उसको टेस्ट ट्यूब में लो और टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम अगर डालेंगे, राइट, एंड द कलर विल चेंज टू येलो, ठीक है, देयर इज कलर चेंज ऑफ येलो, ठीक है। तो इफ द कलर चेंजेस टू द येलो कलर देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और सबसे आसान टेस्ट है दैट यू कैन डू एट योर होम एज वेल। किसी भी तरीके का ऑयल ले लीजिए, राइट। आपको फूड मटेरियल को टेस्ट करना है, उस फूड मटेरियल को, बेसिकली फैट्स का मेन सोर्स हमारा घी, बटर, ऑयल यही है। आप कुछ नहीं करना, आपको एक प्लेन से पेपर को लाइट की तरफ देखना है। यू विल सी जो लाइट है, राइट, A4 साइज़ का आप कोई भी शीट ले सकते हैं, प्लेन कंप्यूटर शीट्स होती है, उसको लाइट की तरफ देखो तो यू विल सी सम अमाउंट ऑफ लाइट, लेकिन थोड़ा सा ऑयल की ड्रॉप डालो उस पर, ड्रॉप सम ऑयल, स्प्रेड कर दो, और फिर उसके बाद लाइट की तरफ देखो तो यू विल सी दैट मोर लाइट कैन कम थ्रू इट, राइट। तो इट इज़ द बेस्ट मेथड टू क्रिएट ट्रेसिंग पेपर एज वेल। आप पूरा उसको अच्छे से ऑयल से सरफेस से कवर करके और फिर उसको जो है हम ट्रेसिंग पेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है पेपर, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट पेपर विल बी देयर when food material added to that, right, so then there is a presence of fat in that particular food
मटेरियल. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू वाइटामिन्स. जो हमारे वाइटामिन्स है अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. ओके, तो फूड में से कंपोनेंट ऑफ फूड एंड दिस वाइटामिन्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, राइट. तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट वाइटामिन्स. As we all know that vitamins come into the category of protective food. As I have already told you that it protects our body from various diseases, right. तो vitamins जो होते हैं हमारे they are mainly of two type, right. वो हैं आपके fat soluble and water soluble. As we all know that our body consists 70% of body contains water and fat का मैंने आपको बताया जब तक फैट बॉडी में नहीं है अगर आप वो वाइटामिन्स ले लो तो भी वो बॉडी में कंज्यूम नहीं होंगे until unless जब तक फैट बॉडी में नहीं है. अगर मैं वाइटामिन्स टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेम्स ऑफ वाइटामिन्स की बात करूँ तो देयर इज़ वाइटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स. और कॉम्प्लेक्स क्यों लिखते हैं इसको? बिकॉज वाइटामिन बी नहीं होता, देयर इज़ ग्रुप ऑफ वाइटामिन्स, राइट. तो इसको हम बी लिखते हैं, सी डी ई और एफ जी कुछ नहीं होता, के, राइट. तो दीज आर द टाइप वाइटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के, राइट. तो ये जो है आपके विटामिन है इसमें से जो आपका बी एंड सी है दैट आर वाटर सॉल्यूबल. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आर वाटर सॉल्यूबल. दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है उसमें दीज आर सॉल्यूबल एंड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. लेकिन हमारा विटामिन डी ई एंड के आर fat soluble, right. If the presence of fat is there in our body then only A, D, E, K are going to be absorbed by the body, right. ये हमारे जो हैं vitamins it requires in very less amount but अगर इनकी deficiency है आपकी body में, if you are not taking vitamins in proper amount then we are going to face number of deficiency disease, राइट. डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब इन वाइटामिन्स की कमी की वजह से, ठीक है, और लाइफ लॉन्ग सम डिजीजेस हैपन्स, राइट. तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज्ड बाय द वाइटामिन, डिफरेंट वाइटामिन्स. ओके, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वाइटामिन्स, ठीक है, डिफरेंट वाइटामिन्स एंड देयर सोर्सेज, व्हाट दे परफॉर्म, डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द वाइटामिन्स एंड द डेफिशिएंसी डिजीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स, राइट. तो मैंने वाइटामिन्स की बात करी थी. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन, वाइटामिन ए बी सी डी ई एंड के, राइट. तो अगर मैं वाइटामिन ए दैट इज़ अ फर्स्ट वाइटामिन इसकी बात करूँ तो इसके मेन सोर्स है कॉड लिवर ऑयल, shark liver oil, or I can say yellow vegetables, right. I have taken two here. So there are different sources but I have written 2 or 3 sources of each vitamin. So it is required for the healthy eye, skin and tissues. जो vitamin A है हमारा वो किस लिए चाहिए हमारी, कि हमारी आई, स्किन और टिश्यूज़ जो हैं वो अच्छे से क्या करें, परफॉर्म कर सकें, राइट. तो अगर विटामिन ए बॉडी में नहीं है तो इट कॉजेज द डेफिशिएंसी डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. एज द नेम सजेस्ट, जो जैसे ही शाम होने लगती है द पर्सन हु इज़ फेसिंग द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन लूजेज हिज विजन, राइट. तो उसे क्या कहते हैं हम, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, राइट. तो अगेन विटामिन बी, इसका अगर मेन सोर्स हम देखें वीट, राइस और फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा, ये आपके क्या हैं, आप दे गिव विटामिन बी इन योर फूड, ओके. और इसका क्या है मेन फंक्शन, मेकिंग मसल स्ट्रॉन्ग्स एंड गिविंग एनर्जी. और अगर ये बॉडी में ना हो
डेफिशिएंसी डिजीज़ बेरी होती है, विच इज़ अगेन स्किन डिजीज़। रेड कलर के आपके रैशेस टाइप जो है वो बॉडी में, हैंड पे स्पेशली आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा है आपका विटामिन सी। एज वी ऑल नो ऑल द सिट्रस फ्रूट्स, राइट, इंडियन गूसबेरी, आंवला, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, राइट। नीडेड फॉर द हेल्दी गम्स, टीथ एंड बोन्स, राइट। मेनली गम्स और टीथ के लिए जो है विटामिन सी की ज़रूरत होती है, और अगर ये बॉडी में ना हो तो इट कॉजेज अ डेफिशिएंसी डिजीज़ नोन एज स्कर्वी। ओके, तो स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग, गम्स हो जाते हैं, टीथ बिकम वीक, और गम्स जो है स्पॉन्जी और ब्लीडिंग होती है उसमें से कॉन्टीन्यूस, राइट। तो इसके बाद आ रहे हम विटामिन डी। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स are the main source of vitamin D. Not only that, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर बॉडी है तो आर बॉडी ऑल्सो सिंथेसाइज, ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन डी। तभी आप सुबह की अगर धूप लेंगे तो विटामिन डी विल बी सिंथेसाइज्ड इन आर बॉडी एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी बोन्स। और अगर हमारी हेल्दी बोन्स नहीं, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज़ देयर इन द बॉडी, तो अ बोन disease causes, that is rickets, जिसमें जो there is a deformation of legs. We are going to learn that as well. Okay, विटामिन ई जो है इसका मेन सोर्स है वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया आपका, राइट, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं आपके और ग्रीन वेजिटेबल्स are the main sources of vitamin E. So it is required for the smooth functioning of reproductive system. As we all know, the system through which living beings give birth to their young ones. तो उस सिस्टम को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर बोलते हैं। अगर विटामिन डी जो है वो बॉडी में नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लिविंग बींग्स, और उसकी वजह से क्या होता है, स्टर्लिटी, मतलब रिप्रोड्यूस करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा है हमारा विटामिन के। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन के। दे हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जब भी आपको कहीं चोट लगती है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो आफ्टर समटाइम्स यू विल फील कि उसके ऊपर ब्लड से ही एक ब्राउन और कुछ वाइटिश कलर की लेयर बन जाती है, राइट। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द फर्दर ब्लड लॉस। अगर विटामिन के इज़ नॉट इन आवर बॉडी, ठीक है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, तो देयर विल बी ब्लड लॉस ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ठीक है। क्लॉटिंग अगर देर में होगी तब तक क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो चुका होगा बॉडी में से, राइट। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीज़ फर्दर। राइट, अगर मैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करूं, दैट इज़ स्कर्वी, तो स्कर्वी पे मैंने अभी बात किया था, द डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी अगर बॉडी में कम अमाउंट में है तो अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम अ डेफिशिएंसी डिजीज़ नोन एज स्कर्वी। और स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है, अ पर्सन बिकम्स वीक एंड एनेमिक। अनामिक मीन्स खून की कमी हो जाती है और द पर्सन बिकम्स वीक, ही बिकम्स वीक। नॉट ओनली दैट, as I already told that scurvy is a disease related to teeth, right? तो इसमें क्या है आपका, he develops a spongy and bleeding gums, right? spongy और bleeding gums हो जाते हैं, राइट, और उसमें से क्या है, ब्लीडिंग होती रहती है और गम्स बिकम वीक, और अल्टीमेटली जो टीथ हैं वो भी वीक हो जाते हैं, राइट। चलिए, अगर अब बात करें हम डेफिशिएंसी डिजीज़, दैट इज़ रिकेट्स। अगेन मैंने आपको बताया रिकेट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी, राइट। तो मेन जो हमारा सोर्स है विटामिन डी का वो मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था द बॉडी ऑल्सो सिंथेसाइज विटामिन डी, राइट। तो जो रिकेट्स जैसा प्रॉब्लम है, रिकेट जैसी डिजीज़ बहुत अर्ली एज से, ठीक है, जो इनिशियल डेवलपिंग एज होती है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जो है इट आल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस
राइट। तो फोस्फोरस और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है। अगर कैल्शियम और फोस्फोरस जो है बॉडी में ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं तो दे आर गोइंग टू इफ़ेक्ट आवर बोन्स, राइट। क्योंकि कैल्शियम और फोस्फोरस जो है आपको देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस फॉर द बोन डेवलपमेंट, राइट। अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं है तो उसकी वजह से द बोन्स बिकम्स वीक। और नॉट ओनली दैट, डिफॉर्मेशन लाइक नॉक नीज, ठीक है, जो नीज हैं आपके वो डिफॉर्म हो जाते हैं, कुछ इस शेप में हो जाता है। आपका जो लेग नीज है वो इस शेप में हो जाती हैं, ओके। तो ये जो है आपकी नॉक नीज है। वैसे ही पिजन चेस्ट इज़ अगेन, क्योंकि रिब्स जो हमारी रिब्स होती हैं उनकी वीकनिंग की वजह से जो हमारी चेस्ट है वो अंदर को धंस जाती है, राइट। तो इट इज़ नोन एज पिजन चेस्ट, दिस इज नोन एज पिजन chest. So these are the major symptoms कि the bones become weak and deformation like knock knees and pigeon chest. Now we are going to learn about some minerals which are needed by our body in very little amount, but they are very important for our body. चलिए, if we talk about minerals, तो minerals are needed in our body. As I have already told you, it is needed in our body in very small amount. Calcium, phosphorus, iron, iodine and sulfur are some examples of mineral which is required in our body. तो if I talk about calcium, तो calcium का जो main source है milk and its products, green leafy vegetables, we get calcium from that. And it is important to build healthy bones and teeth. Not only calcium, phosphorus again it is needed for the growth of bones and teeth. It is said कि जो हमारी बॉडी में जितना भी हम कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 80% कैल्शियम जो है हमारी जो है बोन्स फॉर्मेशन के, जो बोन्स हमारी बन रही हैं उसी के लिए ही यूटिलाइज हो जाता है, राइट। फॉर आवर हेल्दी बोन्स एंड टीथ वी शुड कंज्यूम मोर एंड मोर कैल्शियम। फोस्फोरस की बात करूँ, इसके सोर्सेज हैं मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस एंड मीट. देयर आर मैनी सोर्सेज, आई हैव टेकन सम. Growth of bones and teeth, the same function of calcium and phosphorus. If I talk about next mineral, that is iron. Iron is present in green vegetables, green leafy vegetable, nuts आपके different जैसे cashew हो गया या आपका almonds हो गया, they are the sources of iron. Jaggery, गुड़ जो है again it is very good source and it helps in the formation of hemoglobin. Now what is hemoglobin? Hemoglobin आपका एक जो substance है which gives red color to your blood as well as it carries oxygen to all the body parts. That's why it is very important in our body, right? Iodine we get from seafood and iodized salt. जो हम नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं, आयोडाइज सॉल्ट किचन में, वी गेट आयोडीन फ्रॉम दैट एंड इट इज़ रिक्वायर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड आपके नेक एरिया में होता है एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. एंड अगेन आयोडीन इज़ equally important for the proper functioning of thyroid gland. Now these minerals if they are deficient in our body, then they are also going to cause some deficiency disease which we are going to learn. कैल्शियम डिफिशियंसी की बात करें तो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ. तो बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं, मतलब इजीली ब्रेक होने के चांसेस होते हैं. नॉट ओनली दैट, द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बिकम्स फॉल्टी, मतलब जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है द मूवमेंट ऑफ हार्ट ऑल्सो बिकम्स फॉल्टी, मतलब उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. Crampy pain in different parts of body, particularly the muscles of legs. You will feel the crampy pain. ऐसा लगता है कोई मरोड़ रहा है, ठीक है. तो जैसे ही हम उठ रहे हैं तो you will feel pain, especially in the muscles of legs. वैसे तो किसी भी पार्ट में हो सकता है, but particularly it affects the muscles of legs. टूथ डीके, जो दांत हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, राइट. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी फेस इन द कैल्शियम डिफिशियंसी. नाउ वी आर कमिंग टू द फोस्फोरस डिफिशियंसी.
As I've already told you that phosphorus is equally important along with calcium for healthy bones and teeth, right? तो इसकी वजह से अगर phosphorus बॉडी में नहीं हो तो there will be retarded growth. जो नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है किसी भी बच्चे के लिए वो it retards that growth rate, ठीक है? तो जिस एज ग्रुप में बच्चा है तो वो नॉर्मल बच्चे से यू विल फील कि वो बच्चे की ग्रोथ क्या है, कम है. इट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड. नॉट ओनली दैट, देयर इज़ लॉस ऑफ वेट. वेट में जो है गिरावट आती है. जनरल वीकनेस इज एज द बॉडी इज़ नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, देयर इज़ लॉस ऑफ वेट. तो जनरल वीकनेस विल बी देयर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ phosphorus. Now we are coming to iron deficiency. चलिए बात करते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी की. अगर हमारी बॉडी में आयरन नहीं है तो देयर इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉल्ड एनीमिया. एनीमिया हो जाता है, दैट इज़ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, राइट? एज वी ऑल नो दैट आयरन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. एज देयर इज़ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड अनीमिया. अनीमिया में होता क्या है, एज हीमोग्लोबिन इज़ नॉट देयर तो पर्सन बिकम पेल एंड वीक. उसका जो वाइटिश कलर का स्किन हो जाता है. लॉस ऑफ एपिटाइट एंड फैटिग इज़ देयर. भूख लगना उसका कम हो जाता है. वाइटनिंग नेल्स में जो है वो रेडनेस नहीं रहती. इट बिकम्स वाइटिश कलर, राइट? तो स्वेलिंग इन हैंड्स और फीट. फीट्स में और हैंड्स में यू विल सी द डिफरेंस. तो देयर इज़ स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट. तो द डेफिशिएंसी डिजीज़ caused by the deficiency of iron is anemia, and these are the various symptoms of anemia. Now we are coming to iodine deficiency. Now coming to iodine deficiency, अगर बॉडी में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो तो there is a disease called goiter, right? Goiter occurs in our body, right? अब goiter क्या है? There is swelling in neck region, right? neck region में swelling हो जाती है. as we all know that iodine is required for the synthesis of hormone that is known as thyroxine, ठीक है? थायरॉक्सिन हार्मोन विच हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ अगर ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम thyroid gland, right? It is released from thyroid gland. It is released from thyroid gland. और thyroid gland कहाँ होता है? आपके नेक में होता है. अगर यही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो there will be swelling in some enlargement in neck area. तो this enlargement is known as goiter. अब इसकी वजह से एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ रिलेटेड टू सम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इट मेनली अफेक्ट्स द मेंटल रिटार्डेशन. जो आपकी मेंटल ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देता है. और लेटर लाइफ में मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है उस ग्रोथ को भी क्या करता है? रिटार्ड कर देता है, राइट? तो जो आपका आयोडीन है इट कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज़ नोन एज गोइटर. सिम्टम्स क्या है? मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन इन ग्रोथ, राइट? सो चलिए बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दो कंपोनेंट्स हमारे और भी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. वन इज़ वाटर. नाउ व्हाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प्स इन द रिएक्शंस, राइट? जितनी भी हमारी सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं वाटर इज़ एसेंशियल फॉर दैट. नॉट ओनली दैट, वाटर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करता है. इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन द इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. जो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड उनसे ले रहा है, फूड या मिनरल्स जो भी पूरी बॉडी को दे रहा है, तो उसमें जो वाटर है उसकी मूवमेंट को ईजी कर रहा है. और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी. और बहुत सारे सॉल्ट्स भी हैं जो कि स्वेटिंग के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट
हो जाते हैं। इसके अलावा है आपका रफेज। एज वी ऑल नो दैट रफेज जो है वो सेल्यूलोस्टिक डाइटरी फाइबर्स है विच इज़ not digested by the human body, right? It cannot be digested, but they are very helpful in the bowel movement, and due to this perfect bowel movement we are able to excrete the solid waste product from our body, right? So roughage is equally important. What is roughage? Roughage is cellulosic dietary fibers. Now अब हमने इस सब के बारे में पढ़ लिया, हमने डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, उनके बेनिफिट्स, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, राइट? किस किस तरीके से हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं और हम कौन से विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स या फैट्स उनसे ले सकते हैं। अब हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, राइट? हमें खाना एक्चुअल में क्या खाना है? क्या ये बर्गर, पिज़्ज़ा और मैनी मोर जंक फूड्स कैन कंप्लीट आवर मील? So what type of meal we should eat? We are going to learn that. Now what type of diet we should take? Diet is whatever we are eating is our diet, right? तो हमें diet कैसे खानी है? अब मेरे पास एक word लिखा है that is balanced diet. तो balanced diet consists of all the nutrients which are important for our growth and development. Balanced diet क्या है? All the nutrients which are important for our growth and development. ठीक है, हमें वो डाइट चाहिए which completes our meal with all the nutrients which are important for our ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? तो अगर ये बैलेंस डाइट या प्रॉपर डाइट हमें नहीं मिले तो हियर कम्स एन कंडीशन कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो जो है आपका कुपोषण बोलते हैं, राइट? हमें जब पूरा जो खाना है, खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर हमारी बॉडी में पूरे नहीं मिल पाए तो हियर कम्स एन कंडीशन कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन आपका मेनली स्लम एरियाज़ में होता है कि क्योंकि दे कैन नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर मेनली हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, राइट? तो ये माल न्यूट्रिशन हमारा दो टाइप का होता है, PEM एंड PCM. PEM is protein, energy, malnutrition. और जो PCM है आपका वो है प्रोटीन, कैलोरी, मालन्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है बच्चे सफ़र करते हैं द वेरी मेजर प्रॉब्लम्स विच अकर्स ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, दैट इज़ मारस्मस एंड क्वाशरकोर. वी आर गोइंग टू लर्न दैट. चलिए, द माल न्यूट्रिशन जो भी हो रहा है बच्चों में, तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज़ विच अकर्स बेसिकली इन स्लम एरियाज़. अगर मैं बात करूँ तो हेयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज़, दैट इज़ क्वाशरकोर एंड मारस्मस. ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन होने की वजह से जब आपके किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं डिफिशिएंट है बॉडी में, उसकी वजह से कोई जो है ये क्वाशरकोर और मारस्मस जैसी डिजीज़ हो रही हैं. तो क्वाशरकोर में द मेन डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट, ठीक है, डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट, जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है दैट इज़ प्रोटीन. बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जो आपके जो अर्ली एज में मिल्क ना मिलने, दूध ना मिलने की वजह से क्वाशरकोर होता है, राइट. इसके सिम्टम्स क्या है? रिटार्डेड ग्रोथ. जो नॉर्मल चाइल्ड का ग्रोथ रेट होता है उससे उनका ग्रोथ कम हो जाता है. फेस, फीट और एब्डोमिनल रीजन, राइट, चेस्ट के बिलो जो आपका पेट वाला एरिया है उस रीजन में क्या आती है? स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू वाटर रिटेंशन. पानी इकट्ठा होने लग जाता है इन रीजन्स में. नॉट ओनली दैट, देयर इज़ डिसकलरेशन ऑफ हेयर. हेयर्स का कलर जो होता है वो चेंज हो जाएगा. हमारा जो नेचुरल कलर है वो ब्राउन या ब्लैक होता है,
तो इनका जो कलर होता है वो फेडेड ब्राउन की तरफ आ जाता है या ग्रे शेड में जाने लग जाता है। डायरिया, हैज़ा बोलते हैं इसको हिंदी में। ये होता है जो बेसिकली लूज़ मोशंस लग जाना, राइट। तो डिहाइड्रेशन, तो ये डायरिया जो है, दीज कंडीशंस अकर इन क्वाशियोर। जब भी आपसे पूछा जाएगा द प्रोटीन डेफिशिएंट डिजीज़ बताओ तो यू विल राइट क्वाशियोर। जब मल्टीपल आपके डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो यू विल टेल अबाउट मारस्मस। मारस्मस एक डिजीज़ है विच अकर्स व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज फैट्स, राइट। इसके सिम्टम्स क्या है? वेस्टिंग ऑफ मसल्स। मसल्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी से लूज़ होने लग जाती है, मतलब वेस्ट ख़त्म होने लग जाती है। द चाइल्ड बिकम्स थिन। अगेन मसल्स अगर बॉडी में नहीं होगा तो देयर विल बी, द चाइल्ड विल बी थिन, बिल्कुल स्किनी स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका, राइट। जनरल वीकनेस, वीकनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा आ जाती है। रिटार्डेड ग्रोथ, एज वी ऑल नो कि अगर इतना सब है, बच्चा थिन हो रहा है, वीक हो रहा है, वीकनेस है, मसल्स नहीं है, तो देयर विल बी रिटार्डेड ग्रोथ एज वेल। जो नॉर्मल बच्चों का ग्रोथ रेट है उससे कम ग्रोथ है। नाउ ये बात आ गई आपकी जब हमारा माल न्यूट्रिशन की वजह से मतलब डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स की वजह से वी फेस दिस माल न्यूट्रिशन, राइट। और इसी कंडीशन में अगर खाना ज़रूरत से ज़्यादा, बैलेंस डाइट ना मिले तो माल न्यूट्रिशन होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा हो तो देयर इज़ ओबेसिटी। ना ओबेसिटी, अब अगर हम पुराने टाइम से कंपेयर करें तो आज जो बच्चे हैं वो पहले के टाइम से दे आर मोर ओबेस, राइट। तो इसका रीज़न हो सकता है lack of exercise, they are more involved in computer games or some mobile games rather than physical work। तो lack of exercise की वजह से obesity is increasing day by day। और eating a lot of junk food, ठीक है। जंक फूड हम जो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, जितना भी हम बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, इट इज़ मेकिंग अ चाइल्ड ओबेस। और इस ओबेसिटी की वजह से देयर आर नंबर ऑफ डिजीज़ेस विच अकर लाइक हाइपरटेंशन, राइट। हाइपरटेंशन हो गया या डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, दे आर वेरी कॉमन विद द ओबेसिटी, राइट। तो इन सब को कम करने के लिए जो है हमें क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए। मतलब ऑल द न्यूट्रिएंट शुड बी इन आवर डाइट। वी मतलब हमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिजीज़ नहीं चाहिए, और ज़्यादा एक्सेस खाना खाने से या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से या जंक फूड खाने की वजह से जिस भी तरीके की डिज़ीज़ हो रही हैं, लाइक ओबेसिटी जैसी कंडीशन से भी हमें बचना चाहिए। एक्चुअली ओबेसिटी इज़ इन्विटेशन फॉर अदर diseases, right? We are giving invitation to the diseases come and attack. So in this video we have completed our second chapter of class 6. Stay tuned for the next chapters as well. Like, share and subscribe. Bye bye.